करुणा होई बे संसार वसन मोरा तबे तुच्छ हरे हर कबे निताय चंद्र करुणा होई बे संसार वसन मोरा तबे तुच्छ हरे हर कबे निताय चंद्र करुणा होई बे संसार वसन मोरा तबे तुच्छ हरे हर कबे निताय चंद्र करुणा होई बे संसार वसन मोरा तबे तुच्छ हरे विषयाचारिया कवे शुद्ध विमाना कवे हम हेरावो श्री वृंदावन विषयाचारिया कवे शुद्ध विमाना श्री वृंदावन विषयाचारिया कवे शुद्ध विमाना कवे हम हेरावो श्री वृंदावन विषयाचारिया कवे शुद्ध विमाना कवे हम हेरावो रूप रघुनाथ पदे होइबे आतुति तबे हम बुझावो युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आतुति तबे हम बुझावो युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आतुति तबे हम बुझावो से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आतुति तबे हम बुझावो से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा कथना करो नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा कथना करो सदा
Krishna
जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीडी पाणिचार्य श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गो प्रेमानंद हरे कृष्णा So we'll read today from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnations. Text number 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ashtame Meru Devyam Tu Nabhir Jata Urukramaha Darshayan Vartma Hiranam Sarvashrama Namaskritam Astame Meru Devyam Tu. Oh, sorry, I didn't tell the text. 1:3:13. You told. Huh? You told. What did I say? Yes, that's I found. Yeah, text 13. 1, Canto 1, Chapter 3, text 13. Text 13. Okay, found it? Okay. Astame Meru Devyam Tu. Astame Meru Devyam Tu. Nabher Jata Urukramaha. Nabher Jata Urukramaha. Darsyan Vartma Dhiranam. Darsyan Vartma Dhiranam. Sarvashrama Namaskritam. Sarvashrama Namaskritam. Astame Meru Devyam Tu. Astame Meru Devyam Tu. Nabher Jata Urukramaha. Nabher Jata Urukramaha. Darsyan Vartma Dhiranam. Darsyan Vartma Dhiranam. Sarva Ashrama Namaskritam. Sarva Ashrama Namaskritam. Astame Meru Devyam Tu. Astame Meru Devyam Tu. Nabher Jata Urukramaha. Nabher Jata Urukramaha. Darsyan Vartma Dhiranam. Darsyan Vartma Dhiranam. Sarva Ashrama Namaskritam. Sarva Ashrama Namaskritam. Astame Meru Devyam Tu. Astame Meru Devyam Tu. Nabher Jata Urukramaha. Darshayan Vartma Dhiranam. Sarva Ashrama Namaskritam. Astame Meru Devyam Tu. Astame Meru Devyam Tu. Nabher Jata Urukramaha. Nabher Jata Urukramaha. Darshayan Vartma Dhiranam. Darshayan Vartma Dhiranam. Sarva Ashrama Namaskritam. Sarva Ashrama Namaskritam. Anyone else? Ladies? Astame Meru Devyam Tu. Astame Meru Devyam Tu. Nabher Jata Urukramaha. Darshayan Vartma Dhiranam. Sarva
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमा दर्शयान् वर्तमाधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्. Manya, give it a try. अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमा दर्शयान् वर्तमाधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्. Thank you, very nice. Ashtame, the 8th of the incarnation. The 8th of the incarnation. Merudevyam. Merudevyam tu. In the womb of Merudevi. In the womb of Merudevi. The wife of. Nabhe. King Nabhi. Jatah. Took birth. Urukrama. The all-powerful Lord. Darshayan. By showing. Vartama. The way. Dhirana. Of the perfect beings. Sarva. All. Ashrama. Orders of life. Namaskritam. Honored by. Translation and purport by Srila Prabhupada ki. The 8th incarnation was King Rishabh, son of King Nabhi and his wife Merudevi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. So everyone can repeat after me. The 8th incarnation, was King Rishabh, son of King Nabhi, and his wife Merudevi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. तो सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी जी बताते हैं सौनक आदि ऋषियों को कि भगवान का 8वां अवतार जो है वो है ऋषभ देव का. जब भगवान ऋषभ देव के रूप में आए तो उनके पिता थे महाराज नाभि और उनकी माता थी मेरुदेवी. तो ये अवतार में भगवान ने सिद्ध होने का जो पथ है वो दिखलाया. जो कौन पालन करता है? जिनके इंद्रिय जो है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम कर लिया है, और ऐसे व्यक्ति को जो सभी वर्ण और आश्रम है वो सम्मानित करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर्ड बाय. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, The society of human beings is naturally divided into 8 by orders and statuses of life. The 4 divisions of occupation and 4 divisions of cultural advancement. Very nice. इतना सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखा है. प्रभुपाद जी बोला कि स्वाभाविकी, नेचुरली जो समाज है, वो जो मनुष्य समाज है वो 8 विभाजन में है. पहला है 4 by occupation. Occupation वाला कौन है? What are the 4 occupation? Yes. Occupation is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. और दूसरा 4 आश्रम जो है, और प्रभुपाद जी इसको सुंदर इंग्लिश वर्ड दिया है. प्रभुपाद जी बोले 4 डिविजन्स ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट.
परफेक्शन के बात है ना। तो कल्चर, हम लोग स्कूल में जब थे तो हम लोग सीखे थे कि कल्चर जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी बनाता है, कल्चरल आइडेंटिटी देता है ना। तो ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हम लोग के कल्चरल एडवांसमेंट है। ब्रह्मचारी मीन्स यू आर लर्निंग द कल्चर, गृहस्थ मीन्स यू स्टार्टेड लिविंग द कल्चर, ब्रह्मचार्य इज ट्रेनिंग, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास इज लिविंग द कल्चर। तो जितना हम लोग कल्चर में एडवांस होएगा तो वैसे वैसे हम लोग की लाइफ रिफाइंड होगी। इससे मुझे याद आता है ना, ये सप्ताह में किसी को बोल रहा था ना कि रिसोर्सेस किसी का भी हो, मेरा धन हो, आपका धन हो, दूसरे का धन हो, याद करना एवरीथिंग इज अल्टीमेटली किसका है? कृष्ण। कृष्ण किसको रिसोर्सेस देते हैं? बट लेकिन हम लोग देखते हैं संसार में सम पीपल आर पुअर, सम पीपल दे डोंट हैव रिसोर्सेस। ऑफ कोर्स वी नो दिस लॉ ऑफ कर्मा दे आर, बट लॉ ऑफ कर्मा कैसे वर्क करे? जो फ्रीडम को अब्यूज करता है ना, लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा इज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है, तो एवरी एक्शन कहां से डिटरमिन होता है? फ्रॉम योर चॉइस, फ्रॉम योर चॉइस। आपका जो फ्रीडम है, भगवान जो आपको स्वतंत्र दिया है, आप क्या चुनते हैं करने के लिए, उसी से तो कर्म के, मानो कर्म का नियम जो है वो मानो एक प्रोसेसिंग प्लांट की तरह है। सो इफ यू पुट द इंग्रेडिएंट देन यू गेट द एंड प्रोडक्ट। तो व्हाट यू वांट टू पुट इनटू द प्रोसेसिंग प्लांट, इट्स योर चॉइस ना। तो मानो नूडल बनाने वाला मशीन है, तो आटा नहीं डालोगे तो नूडल थोड़ा ही निकलेगा, सही बात कि नहीं? अगर आप मानो नूडल वाला मशीन में आप बालू डाल दो तो वो क्या करेगा? बालू नूडल निकलेगा। आप बालू डाल दोगे तो नंबर वन मशीन डैमेज हो जाएगा और नूडल तो निकलेगा ही नहीं। तो हम लोग के जो फ्रीडम है, जो चॉइस है भगवान हम लोग के दिया है, व्हाट वी चूज टू डू, देन ओनली लॉ ऑफ कर्मा। अगर हम लोग भक्ति करने लगेंगे, वी सरेंडर टू कृष्ण, तो मतलब कि द प्रोसेसिंग प्लांट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस रिएक्शन। भक्ति करने से रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग अपना कर्म करेंगे तो हम लोग के रिएक्शन होगा। तो हम लोग के जो रिसोर्सेज है, ये कल्चरल एडवांसमेंट जो होता है, देन यू कैन स्टार्ट सीइंग कृष्ण। जैसे आज हम लोग सबको चैंट कर रहे थे ना, तो चैंटिंग करते 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 अबाउट 6:15 हो गया, तो एक थॉट आया मेरे माइंड में ना। हम लोग, मुझे थॉट आया, इंग्लिश में कहावत है ना, इट्स मोर इजिली सेड देन डन। बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। स्क्रिप्चर्स बोलने के लिए क्या कहता है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आधे घंटे के बाद में एक्चुअली चांटिंग करो, कृष्ण के याद करो, बहुत कड़ा काम है। फिर माइंड भागने लगता है, माइंड भागने लगता है। इट्स वेरी नाइस। हम लोग के माता जी लोग प्रसाद बनाता है तो हम लोग कथा के बाद में सबको एंजॉय करता है ना। आज मैं चैन कर रहा था, मैं बोला कि मैं सोचा माता जी लोग को पूछूं कि कितना माला किया है रोटी बनाने से पहले। अगर एक को माला नहीं किया तो मैं तो रोटी नहीं खाने वाला। कल हम लोग क्लास में सुने थे, जो कॉन्स्टेंस रहेगा वो चला जाएगा। तो मतलब ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा इज डिफिकल्ट। यहां पे शब्द आया है ना कि द लॉर्ड शोड द पाथ ऑफ परफेक्शन। चैतन्य महाप्रभु ने पाथ ऑफ परफेक्शन सिखाया है, या फिर ऋषभ जी ने पाथ ऑफ परफेक्शन सिखाया। तो सिटिंग टुगेदर टू चांट, ऑफ कोर्स certain things should happen in a certain way. Of course प्रसाद नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे ना, there will be no offering on time. So that's why we need to take turns. You cannot have Mataji is making the chapati all the time.
So 2 of them make it this week, then 2 of them make another week, 2 of them make another week. इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे टेम्पल वर्शिप भी होता है, टेम्पल वर्शिप भी होता है. सुमुखा प्रभु इज वेरी ब्लेस्ड, यू नो, ही डज डीटी वर्शिप 5 days a week. लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं टू बी ये लीडरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यू शुड ऑर्गेनाइज इन सच अ वे. प्रभुपाद जी बोला सब लोग मिल के करो, सब लोग मिल के करो. काहे मिल के करो? बिकॉज एवरीवन नीड्स टू चेंज देयर राउंड्स इन ब्रह्म मुहूर्त. जब पुजारी केवल ब्रह्म मुहूर्त में खाली डीटी वर्शिप करी एंड देन डोंट चेंज देयर राउंड, देन प्रभुपाद सेज द डीटी वर्शिप विल बिकम गला ग्राहा. गला ग्राहा मतलब जैसे गला के बोझ बन जाएगा. मुझे कोई भी सर्विस मुझे बोझ बन जाएगा. तब ऐसे मुझे काम है एक दूसरे के हेल्प करो इन सर्विस सो दैट एवरीवन कैन मेक कल्चरल एडवांसमेंट, एवरीवन कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. इसीलिए द सर्विसेज आर शेयर. द बॉटम लाइन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन कलयुगा? chanting Hare Krishna. If you don't chant Hare Krishna, there is no way you can get purification. ऐसे तो दुनिया भर के आदमी पूजा करे हैं, कहीं नहीं सबके हृदय से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरे निकल जाए, बिकॉज दे डोंट फॉलो द युग धर्म. तो यहां पे बोले कि द 4 divisions ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट. तो हम लोग के कल्चरल एडवांसमेंट रिफाइंड होना होगा. एक कल्चरल एडवांसमेंट है द क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट. एक कल्चरल एडवांसमेंट है व्हेन यू एडवांस इन योर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, you can see things more and more and more clearly. भगवान कन कन में वास करे, किससे इसके दिखाए? जब हम लोग ट्रांसेंड करेगा, जैसे हम लोग के माता जी मुझे कल बता रही थी ना, माता जी को हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो पहला चीज डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला क्या? माता जी बोला एथराइटिस पेन है बोले. तो दवाई दिया एथराइटिस पेन का, 1 हफ्ता में नहीं राइट हुआ. तो बोला अच्छा एक्सरे करे पड़ी. तो एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, बोला एथराइटिस नहीं है. एक्सरे किया तो देखा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर. वेरी नाइस एग्जाम्पल. भगवान कन कन में वास करे है, लेकिन डॉक्टर देख के हाथ फूल गए, मिसडायग्नोस कर दिया. ऐसे सब चीज में भगवान वास करे. जबले हम लोग 3 गुण से ऊपर नहीं उठेगा तब वो हेयरलाइन फ्रैक्चर, एक्सरे आंखी जबले नहीं हुई तबले भगवान नहीं दिखाई. हम जानता है, अभी अब क्लास में सुना, सब कोई जानता है कि भगवान सबके हृदय में वास करे ना. मंगल के रामायण में सबको जाने हैं भगवान सबके हृदय में वास करे. लेकिन जैसे बुद्ध के सूर्य उदय होए, भुला जाए कि भगवान वास करे. भुला जाता है. तो द इंटेलिजेंट क्लास, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, द प्रोडक्टिव क्लास and the labor class are the 4 divisions of occupation. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो ब्राह्मण ऐसे नहीं है कि खाली जनेऊ पहना है तो ब्राह्मण है, या गायत्री चयन करता तो ब्राह्मण है. ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, ये सभी कुछ भगवान का है. Therefore don't waste. प्रभुपाद जी बोला कि we should take prasadam right to the neck, कि दूसरा कुछ खाने का, बट उसका मतलब नहीं है कि वी शुड वेस्ट प्रसादम. प्रसादम वेस्ट करे हुए आप, जैसे हरदम डिवोटी मांगो, समझो ना, जैसे अगर आप सिंफुल एक्टिविटी करेगा, पाप करेगा, पाप के रिएक्शन कौन सी है? दंड मिले. ठीक है. लेकिन अगर आप वैष्णव अपराध करेगा तब पाप के रिएक्शन है कि आपके दंड मिले. वैष्णव अपराध के रिएक्शन है पूरा कुल डिस्ट्रॉय हो जाए. ऑर्डिनरी खाना बिगेगा तो नेक्स्ट लाइफ में खाना नहीं मिली. प्रसादम बिगेगा तब. प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. प्रसादम और भगवान में डिफरेंस है? प्रसादम और भगवान में डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस. हम लोग भक्ति करता है कौन सी करे वास्ते? कृष्ण के प्राप्त करे वास्ते. और हम कृष्ण के बीगेगा तब कैसे कृष्ण प्राप्त हो?
रिसोर्सेज वी मस्ट, जैसे जैसे हम लोग स्पिरिचुअली एडवांस होगा तो हम लोग वैसे वैसे कल्चरली एडवांस होगा, वैसे और रिफाइंड रहेगा। हम लोग का डिजायर मांगे टू बिकम रिफाइंड, दैट्स हाउ इट शुड बी। जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन ना, जैसे आज हम लोग प्रभुपाद जी गुरु पूज किया तो वी पुट प्रभुपाद जी चंदन, तो चंदन हम लोग रखता है तो हम लोग कितना चंदन यूज करता है, क्योंकि चंदन के लेपन तो हम लोग करता नहीं है। इट्स कृष्ण's रिसोर्सेज, थिंक लाइक दैट, अदरवाइज कृष्ण विल नॉट, अगर हम वेस्ट करें रिसोर्स कृष्ण हमको नहीं दे, कृष्ण उसके रिसोर्स दे है, कृष्ण जाने जो कैसे यूज करे, समझ गया? वो इंटेलिजेंट है पड़ी। हाउ डू यू, जैसे आज घर के हेड है, हम लोग अपने घर में सब हम लोग शॉपिंग करे जाता है तो हम लोग जितना पैसा लेके जाता है हम लोग उसका मैक्सिमम वैल्यू लेके आओ। यू डोंट वांट टू ओवरपे समवन, तो कृष्ण की सेवा भी ऐसे करो, हम रिसोर्स वेस्ट करेंगे भगवान हमको नहीं दे, नहीं तो हम लोग सोचेगा कहा है कोई डिवोटी धनवान है, कई डिवोटी के नहीं है, भगवान उसके खाली देवे है जोन भगवान दोनों है, भगवान हरि है, भगवान कभी कभी डिवोटी के सब कुछ ले ले सो दैट यू कंप्लीटली सरेंडर, और भगवान उसके देवे है जो जाने है कैसे यूज करे, बिकॉज अगर अब्यूज करेगा तो कर्म बंधन में पड़ जाएगा, भक्ति नहीं रह फिर ऑफेंसिव हो जाएगा ना? तो हम लोग इसे रिफाइन होने पड़ी, कल्चरली रिफाइन होने पड़ी। तो इंटेलिजेंट क्लास है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मतलब क्षत्रिय क्लास। क्षत्रिय मतलब नहीं है खाली युद्ध करे, क्षत्रिय क्लास है, कौन बोले एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है तो कैसे दंड भेद प्रेज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है तो जो इंटेलिजेंट रूलर है तो वो जाने हैं किसके एनकरेज करे के, किसके बड़ाई करे से एनकरेज हो जाए, किसके दंडित करे के है, किसके नहीं तो फिर इम्बैलेंस हो जाए, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाए सोसाइटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। फिर प्रोडक्टिव क्लास, जो वैश्य ना प्रोडक्टिव क्लास है, वो लोग जाने हैं, वो लोग जाने वाले वैश्य। एक बार एक पर्सन रहा तो उगे जगन्नाथपुरी यात्रा करे के वास्ते, बिजनेसमैन रहा, तो लड़का ने उसके कन्विंस करके उसके भेजे तीर्थ करे जाओ, तो तीर्थ पे गए उसके, तो गए जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करीस, जगन्नाथ जी के दर्शन करीस। फिर जगन्नाथपुरी में एक जगह है उसके बोले स्वर्ग द्वार, मतलब वहां पे कोई के भी क्रिमेशन करो वो लोग स्वर्ग चला जाए। तो बिजनेसमैन के लड़कन भेजे तीर्थ करे, तो ये जगन्नाथ जी के दर्शन करीस। फिर जब जगन्नाथपुरी में जब घूमता रहा तो यहाँ स्वर्ग द्वार के लिए गए, स्वर्ग द्वार के लिए गए तो वहां सुनीस ना आदमी लोग सब इतना ढेर क्रिमेशन वहां पे हुए है, तो बोले कि कौन सी हुए, तो बोले यहाँ पे जिसके क्रिमेशन हुए बोले वो स्वर्ग चला जाए। तो कहे कि बिजनेसमैन रहा, तो ये ऐसे नहीं सोचीस कि अगर हमारे भी यहाँ श्राद्ध हुई तो स्वर्ग चला जाएगा, वो बोले सबको ना हो यहाँ स्वर्ग जाए के वास्ते, तो यहाँ तो लकड़ी के बिजनेस करे लाइक के, यहाँ पे लकड़ी के बिजनेस करो तो कभी लॉस नहीं हुई, मतलब सबको तो यहाँ है। तो प्रोडक्टिव क्लास ऐसे कैलकुलेटिव माइंड है। हाउ टू, जब प्रभुपाद जी बोले हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी ना, जैसे मैं उस दिन प्रबोधानंद प्रभु से बात कर रहा था, तो हम लोग वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव टू बी प्रोडक्टिव। 7 of the 7 आप पढ़िए। श्रील गुरुदेव जब प्रभुपाद जी के प्रचार के यात्रा पे जाते थे, तो एक टाइम श्रील गुरुदेव वाज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू डू अ प्रोग्राम। तो श्रील गुरुदेव जब जा रहे थे तो 2 डिवोटीज गुरुदेव के साथ में जा रहे थे, तो श्रील गुरुदेव और एक डिवोटी और था, तो दे वेंट एंड बॉट अ एयर टिकट कि एक जगह से दूसरा जगह जाए। तो गुरुदेव जब टिकट खरीद रहे थे तो श्रील गुरुदेव ने 2 टिकट लिया जाने के लिए और आने के लिए 3 टिकट ले लिया। तो जो दूसरा डिवोटी साथ में जा रहा था बोले हम लोग तो 2 ही जने जाएगा, तुम कहा रिटर्न 3 टिकट लेता है। तो श्रील गुरुदेव बोले कि हम लोग 2 लोग जा रहे हैं भक्त बनाने के लिए, उधर से एक तो मस्ट लेके आना है,
तो हम लोग के एफर्ट में वी हैव टू बी प्रोडक्टिव, वी हैव टू बी प्रोडक्टिव। अपन ओन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, और when we are putting some effort into preaching, then we have to see that we are making devotees and offering these devotees to Srila Prabhupada. Devotees have to rise to the platform of initiation and making progress. जो initiated है वो second initiation, जो second initiated है वो study करे scriptures, और जो second initiated है then you must start preaching Krishna consciousness. So you have to be productive. In Krishna consciousness, Prabhupada ji बोले नहीं, हम लोग lazy नहीं है Krishna consciousness. Sadhu does not mean lazy. Sadhu means very. और Prabhupada ji को हम देख सकते हैं. Prabhupada ji was perfect with money. Prabhupada ji was perfect with construction. Prabhupada ji perfect with books. Prabhupada ji was concerned about prasadam distribution. Prabhupada ji concerned about everything to grow the movement. No? So we have to be. और इसमें मुझे याद आता है हम लोग हरदम प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है प्रभुपाद जी के लीलामृता में ना, प्रभुपाद जी बोले शीला गुरु, आई थिंक 7 में है ये स्टोरी, कि शीला गुरुदेव जाके प्रभुपाद जी को कंप्लेन करा, बोले जब हम लोग के टेम्पल के ट्रेजरा है, बोले हम लोग सब डोनेशन कलेक्ट करके लाता है, पैसा नहीं दे, और बोले हम लोग के पैसा नहीं दे खर्चा करे वास्ते ना, बोले जब प्रोग्राम हुए तो ट्रेजरा आवे नहीं। सिद्धांत प्रभु की लाइफ सुनता नहीं हो बोले ट्रेजरा आवे नहीं, बोले he doesn't give us money to spend. तो प्रभुपाद जी बोले oh he is a very good treasurer. प्रभुपाद जी बोले कृष्णा के मनी जो है सेव करे है, प्लस you don't waste Krishna's resources. That's the point. You can't be wasteful of Krishna's resources. So again, then there is Laiba class. Laiba class मतलब जो इंस्ट्रक्शन पे बिना गाइडेंस के सर्विस नहीं कर पाता है, तो उसको गाइड करना पड़ता है कि डू दिस डू दैट ना, मजूर जो करता है, मजूरी करता है। एंड द स्टूडेंट लाइफ, द हाउस होल्डर लाइफ, रिटायर्ड लाइफ एंड रिनाउंस लाइफ आर द 4 स्टेजेस ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट टुवर्ड्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कल्चरल एडवांसमेंट क्या है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कल्चरल एडवांसमेंट केवल ये नहीं है कि हम लोग मटीरियली फिट एंड फाइन एंड स्पिक एंड स्पैन हो जाए ना, कि हम लोग अब कौन सी बोले, प्रभुपाद जी बोले फोक और नाइफ से भोजन करे लगा तो मतलब आई एम कल्चरली एडवांस्ड, ऐसे नहीं। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, 2 बात है, यू मे बी स्पिरिचुअली एक्टिंग ना, हम लोग स्पिरिचुअली एक्ट करता है, हम लोग स्पिरिचुअली कृष्णा कॉन्शियस वे सब चीज करता है, बट आर वी गेटिंग द रियलाइजेशन? जैसे जैसे मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में टाइम जाए है ना, तो रियलाइजेशन मतलब ऑलवेज रिमेंबर नेवर फॉरगेट कृष्णा, 24/7 कृष्णा याद आए कि नहीं? राधानाथ स्वामी महाराज बोले द ओनली प्रॉब्लम वी हैव इज वी आर नॉट इनफ अफ्रेड ऑफ माया। ये रियलाइजेशन की बात है ना, जब हम लोग जैसे जैसे स्पिरिचुअली एडवांस होगा तो हम लोग के रियलाइजेशन है कि माया इज वेरी डेंजरस, यू कांट टेक माया फॉर ग्रांटेड ना, ऐसे नहीं कि तो चलेगा हम लोग तो मुझे हरे कृष्णा चैन करता है, इला ऐसे नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो रियलाइजेशन होना चाहिए। एज टाइम गोज बाय, हाउ मेनी ऑफ अस आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ? वो कॉन्फिडेंट है कि एकदम कृष्णा याद है जी हमें? इस रियलाइजेशन तो मतलब कि जब यू आर रियलाइजिंग यू कैनॉट, you may not be able to remember Krishna, then what is the solution? You work towards it more. कौन confident है कि tomorrow you die, one of your arteries get blocked, you go back home, back to Godhead. हम लोग अभी नहीं कॉन्फिडेंट है। That means we must, ये भगवान हम लोग के झटका दे, थोड़ा से यहाँ पे खाली थोड़ा से एक आर्टरी से थोड़ा से दबाए हम लोग के, भगवान रियलाइजेशन दे। देखो लाइफ ऐसे नहीं, पदम पदम यद विपदम, कृष्ण मुझे व्हाइट हेयर दे रहे, जस्ट लाइक माय फादर इन लॉ, ऑल व्हाइट हेयर, he doesn't die, he doesn't hide, no, he's getting wise, he's realizing I'm coming to die. Karnamit Prabhu, he's continuing to surrender more and more into Krishna consciousness. So that is realization. We should
Very nice example is Mahaprasad Prabhu. No? He reads Bhagavatam every day. It's a realization. जब हम लोग इनके नष्ट प्रायशु भद्रेशु जब ये रियलाइजेशन आई तभी तो हम लोग रोज पढ़ेगा. जब रियलाइजेशन नहीं है तो हम लोग हाँ क्लास में सुना है नष्ट भागवत पढ़े थे सब अभद्र नष्ट हो जाए है. भागवत कब पढ़ता है? कोई संडे के भागवतम क्लास देख सुन लेता है? पढ़ता है. टू रीड द भागवतम एवरी डे. तो प्रभुपाद जी बोले इट्स रियलाइजेशन. Out of these, the renounced order of life or the order of sannyas is considered the highest of all, and a sannyasi is constitutionally the spiritual master of all the orders and divisions. तो बोले जो सन्यासी है, सन्यास जो है वो सबसे ऊंचा अवस्था है ना. तभी से जब जो सबसे ऊंचा अवस्था में है वो नेचुरली सब वर्ण और आश्रम के गुरु बन जाए ऑटोमेटिकली. तो सन्यासी मीन्स व्हाट डज सन्यासी मीन? What is renounced order of life? What is there to be renounced? बॉडी तो हम लोग के है नहीं, सब चीज तो भगवान के है. तो what is there to be renounced? What is there to be renounced? क्या छोड़ना? क्या करोगे तो सन्यासी हो जाओगे? खाली ऑरेंज कपड़ा पहनेगे तो सपोज दुकान में से खरीद के पहन ले. सन्यासी मीन्स माइंड, body and words completely given to Krishna. तबे गुरुदेव बोले त्रिदंडा संन्यास है. त्रिदंडा means three things: body, mind, words. और कर्म है BMW. Oh, that's a good remembrance. BMW सब लोग जाने ना. सबको मांगे BMW ड्राइव करे. सबको BMW ड्राइव करो. बॉडी, माइंड और वर्ड्स भगवान के कंप्लीट. थैंक यू सुमुखा. इट्स गुड इजी. ऐसे एक्चुअली दिस इज वे टू लर्न. ऐसे हम उसको रिमेम्बर करने लगे नॉलेज. तो बॉडी, माइंड और वर्ड से कंप्लीटली जो भगवान को शरणागत है. तब जड़ भरत के स्टोरी है ना, महाराज जड़ भरत के. जब थर्ड लाइफ में जब जड़ भरत हो गया तो मुंह नहीं खोलता रहा, बातें नहीं करे कोई. जब मुंह खोलीस तो महाराज रहुगण एनलाइटन्ड रह गए. मांगो मुंह खोलो तो मांगो दूसरा आदमी ऐसे नहीं कि मुंह खोलो आदमी बोले. जब ऐसे करे मतलब बेकार बात करता है. जब आदमी कहे वाह दैट मीन्स कुछ गड़ू बात कर रहा है. तो सन्यासी बन जाए खाली ऑलवेज ग्लोरीफाइंग कृष्ण. और माइंड में खाली सोचो, जैसे प्रभुपाद जी खाली सोचे हाउ डू वी serve Krishna, how do we glorify Krishna? By prasad distribution, by book distribution, by Harinam Sankirtan, by giving someone Krishna consciousness. Yara dekho tara kaha Krishna upadesh. तो रकम से devotees sometimes सोचते हैं how do I spread Krishna consciousness? How do I spread Krishna consciousness? So in the sannyas order also there are 4 stages of upliftment towards perfection. These stages are called Kutichak, Bahudak, परिव्रजकाचार्य एंड परमहंस. तो सन्यासी में भी 4 कैटेगरी है. 4 कैटेगरी है. पहला है कुटीचक. कुटीचक में कौन सी है? व्हाट इज कुटीचक संन्यास? कुटीचक संन्यास में मतलब अपन घर नहीं छोड़ो, खाली घर के बगल में दूसरा घर बना लो और घर के किचन में से प्रसाद आ जाए वहां खा लो. So guys, remembering Vishnu Gada Prabhu. बोले कुटीचक संन्यास है. डाउन स्टेज रहता है कुटीचक संन्यास. फिर बहुदक संन्यास. व्हाट इज बहुदक? एनीबॉडी रिमेंबर्स? इधर प्रभुपाद में प्रभुपाद जी तीनों चेतन चेतन आई थिंक प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करे से. ओके प्रभुपाद जी बोले हैं लेट्स सी. हाँ श्रीमद् भागवतम 1841. ठीक है. भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले हैं कि so in Vrindavan you will find 4 types of sannyas. Sannyas is good. Kutichak, when one takes sannyas, there are the processes. He is not practiced
to beg from door to door. Therefore, in the beginning, he makes a cottage outside the village, and the foodstuff comes from his home. सन्यासी का आप देखा ना, सन्यासी से उतरिया पहरे, कपड़ा पहरे से गड्ढे में से, तो एक्चुअली भिक्षा मांगेला रेवे। तो बोले जब पहले आदमी सन्यास ले पहले घर से निकले तो भीख मांगेला काम नहीं कर पाया ना। Even you go for book distribution, you're begging people to buy, people will say no. तो भीख मांगेला काम। एक टाइम मुझे याद है कि महाविष्णु महाराज बोले लंदन में गए, एक जगह डोनेशन मांगे, तो एक बिजनेसमैन बोले तुम लोग साधु लोग तो इजी धंधा है, खाली मांगे चला आता है। तो महाराज बोले जब इजी धंधा है तो तुम भी चलो मां सके मांगो। ये जाके डोनेशन मांगो, बहुत बड़ा काम है। हमें से जैसे I always tell Padma, when we are doing book distribution, ऐसे नहीं कि हम लोग ज्ञान बेचता है, but it also makes us humble when you try and ask for a donation. वैसे तो कोई धनवान व्यक्ति सके स्पॉन्सर कर ले, सब फ्री बांट दो सब चीज। तो ने बोला कि फ्री खाली बांट दो इसे। तो जी एक्चुअली में बनाया है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से पूरा इस्कॉन सोसाइटी सके मेंटेन हो जाए, टेम्पल्स मेंटेन हो जावे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से डिवोटीज मेंटेन हो जावे। प्रभुपाद जी जब संस्था शुरू किया था, डिवोटीज वर ओनली पीपल हु वर फुल टाइम पीपल। जो फुल टाइम मंदिर में था वही डिवोटी है, जो घरे रहे वो लोग कांग्रेगेशनल मेंबर है। अभी तो हम लोग गए, हम लोग सब कांग्रेगेशनल मेंबर है। तो महाराज बोले कि तो तुम भी चलो मांगो ना। तो एक टाइम महाराज बोले एक जगह पे महाराज गए, तो एक आदमी बोले तुम लोग साधु लोग कुछ काम नहीं करता है, बोले मेहनत करे के चाहिए। तो महाराज बोले कि मेहनत, बोले कि व्यक्ति बताया, बोले तुम्हें चाहिए काम करो। तो महाराज बोले काम करे से कौन चीज हुई, बोले तो बोले काम करेगा तो सब सुख सुविधा हो जाए। बोले तो बोले सब सुख सुविधा हो जाए तब कौन चीज करेगा। तो बोले घर द्वार रही, परिवार रही, सबके खाए पिए के अच्छा रही सब चीज, तो एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। तो बोले जब सब चीज कर लेगा तब कौन सी करेगा। तो बोले रिटायर्ड हो जाएगा। तो बोले रिटायर्ड होके तब कौन सी करेगा। तो बोले कुछ करेगा नहीं बोले। तो महाराज बोले वही तो अभी हम करता है। हमें कुछ करेगा नहीं, हम कृष्णा के ग्लोरीफाई करता है। क्योंकि हम लोग सोचता है पूरा साइकिल जाएगा तब हम लोग जाकर भगवान के ग्लोरीफाई करेंगे। एक्चुअली वी कैन ऑल डिपेंड ऑन कृष्ण, कृष्णा प्रोवाइड करे हम लोग के। तो अगेन इट कम्स बैक टू द पॉइंट, कृष्णा प्रोवाइड करे, जो जाने भगवान कैसे यूज करे है भगवान के वास्ते, कृष्णा विल कम प्रोवाइड करे। तो यू कैन यूज एवरीथिंग फॉर कृष्ण से। तो भले कुटीचक है तो घर से बेगिंग नहीं कर पावे तो घर से बहरे जाके रहे, गांव में घर से अपन निकल जाए लेकिन प्रसाद घर से आए। But he has no connection because by Vanaprasth he has already left home and by sannyas completely, but takes prasadam from home. This is Kutichak. Then when he is practiced, he goes from door to door. That is called Bahudak. Bahudak मतलब घर घर जाए। जैसे हम लोग के गोस्वामी लोग तो एक्चुअली परमहंस रहा, बट जैसे एग्जाम्पल से बोले ना कि वृंदावन के गोस्वामी लोगन रहा तो बोले जो कृष्णा पे कॉम्प्लीटली सरेंडर है, बोले वो एक घर पे 2 दफे भीख नहीं मांगे। तो दे गो डोर टू डोर, डोर टू डोर। यही बात तो चैतन्य महाप्रभु बोला, प्रति घरे घरे किया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। वी गो डोर टू डोर, एवरी टाउन एंड विलेज। तो डोर टू डोर, एंड देन व्हेन ही इज स्टिल मोर प्रैक्टिस ही बिकम्स अ प्रीचर। तो परिव्रजकाचार्य प्रभुपाद जी के हम लोग कुछ बोलता है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस, प्रभुपाद जी परमहंस परिव्रजकाचार्य। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोले हैं परिव्रजकाचार्य goes from country to country, state to state for preaching, and after preaching, when the preaching is advanced to some extent, he then sits down in a place as Paramhamsa. Paramhamsa मतलब एकदम absorbed। लेकिन प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु बोला हम लोग के परमहंस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग के परमहंस अगर है भी कोई तो परिव्रजकाचार्य पे आ जाओ, कम 1 स्टेप डाउन, बिकॉज हम लोग के फॉलन कंडीशन सोल्स के बचाए के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपन सुविधा नहीं देखे। प्रहलाद महाराज बोले कि पूरा संसार के कर्म हमें दे दो, टेक एवरीवन बैक होम बैक टू गॉड, आई विल गो टू हेल टू सफर। दिस इज परिव्रजकाचार्य। वी आर ऑल preaching devotees, everyone should be। हमारा आज्ञा गुरु है
तारा ही चैतन्य महाप्रभु की ऑर्डर है कि एवरीवन शुड प्रीच। सुबह सुबह हमारे काका जी बोल रहे थे ना, ये लोग गए थोड़ा यहाँ पे चले, तो आगे गया तो कोई आदमी अपन अंगना में कुछ रेक कर रहा था, तो उसको बोला कि आप लोग संडे या ट्यूसडे को आया करो, ट्यूसडे के रामायण। तो काका जी बोल रहे थे ऐसे हम लोग चैंटिंग करता है, इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। हम लोग 6:30 ले चैंट करता है, मे बी वी कैन फ्रॉम 5:30 to 6:10 we can all sit together and chant, और जो सके तो यहीं पे बैठ के चैंट करते रहो। बट देन सम पीपल कैन ऑल्सो गो एंड चैंट ऑन द रोड एंड देन यू इनवाइट पीपल। आप लोग के दर्शन करे से लोगों के पाप करिए, डिवोटी के दर्शन करे से बोले कि गंगर परस होइले पाश्चात्य पवन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। जब आप वैष्णव रहेगा तो आपके दर्शन से आदमी के पाप कटे जाए। तो आप जानना, आप रास्ता पे जाएगा, मांगे कोई तुम्हें देखे, मांगे उसके पाप कट जाए, केयरफुल रहना। तुम्हें भी मांगो आगे रकम भरो ऐसे नहीं मांगे रहे कि तुम जाओ रास्ता पे, तुमने लौट के आओ फिर भागवतम क्लास में तो ये बोले 4 प्रकार के सन्यासी रहे हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करें। The Paramount stage of life is the highest stage of perfection. This order of life is respected by all others. Maharaj Rishabh, the son of King Nabhi and Merudevi, was an incarnation of the Lord, and he instructed his sons to follow the path of perfection by tapasya. सबसे फेमस वर्स है, सब लोग याद रखो। ऋषभ देव ही भगवान के अवतार है, जो बोले है तपो दिव्यम पुत्र का। ऋषभ देव अपन लड़कन की तपस्या कि मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के वास्ते, तपो दिव्यम पुत्र का। और कैसे तपस्या करो, कैसे तपस्या करो? तपो दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल। अब 3 बजे सवेरे उठ के काम पे चल दोगे तो वो तपो दिव्यम नहीं है, वो तो इंद्रिय भोग के वास्ते मन करता है ना। 4 बजे सवेरे उठ के मंगल आरती आएगा तब तपो दिव्यम ट्रांसेंडेंटल तपस्या करो। भगवद गीता में भगवान बोले ना कि वी डोंट डू टू मच एंड वी डोंट डू नथिंग, ऐसे नहीं मांगे। नियम आग्रह, नेक्टर इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बोले यू डोंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एट ऑल और यू ओवर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। It must be, everything must be done in moderation. ऐसे नहीं कि रात भर सुधबे नहीं करो, मंगल आरती जाके रात भर सुधबे नहीं करो, नहीं, मॉडरेशन में सुतो। और ऐसे नहीं कि 12 घंटा सुतो मंगल आरती उठ नहीं पाओ ऐसे नहीं माने। एवरीथिंग हैज टू बी, जैसे प्रसाद भी लेवा जाए वैदिक सिस्टम में, मॉडरेशन में खाओ। ओवर ईट कर लेगा तो फिर नहीं वर्क करेगा। ओवर ईट कर लेगा, मैं तो खुद अपन लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम डायबिटिक so you take prasadam too late or you eat the wrong things, sweet kha lo. I was sharing with my kaka yesterday. This week I had a very difficult sort of a week, not in terms of work or anything like that, but I could feel my body was, my internal system was not right. I could feel कि जैसे जना organs collapse हुए ना, when the sugar is high, this is what happens. तो ये मॉडरेशन में खाना, ये सब करना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच, बिकॉज वैदिक सिस्टम है ना, व्हेन द सन इज हाई दैट्स द टाइम यू ईट द बिगेस्ट मील, बिकॉज उससे डाइजेशन के फायर जो है वो चालू है ना। जैसे जैसे रात होते जाए तो वैसे वैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन होने लगे ना। ऊटा मशीन में ढेर धान छोड़ देगा, तो धान जो लोग धान पेरे लोग जाने ना, तो जब धान काटा जाए तो उसमें धान के कौन सी बोला जाए, वो नहीं, जो बंडल रहे उसके लेना, हाँ, तो लेना उठा के इसे मशीन में छोड़ा जाए ना, तो वो पैरा बीगे एक बगल और धान गिरे नीचे। तो हम लोग भी जब गांव में रहा तो हम कभी देखी ना ऐसे, कभी कभी मांगो और आवे जल्दी से, बड़ा लेना उठा के छोड़ दो, बस मशीन बजा के रुक जाए, और प्रॉब्लम और देरी फिर उसे निकालो फिर। तो हम लोग के भी यही रकम है, when we don't do it right with the body, सबके बॉडी डिफरेंट है, सबके डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट है, तो do according to, food should be eaten by your own choice, food आपन मस्त। तब ऐसे बोले सबसे बेस्ट भोजन है you cook for yourself, सबसे बेस्ट way to eat is cook for your own self।
नहीं तो फिर क्या हो जाता है हम लोग, तो डोंट सकम टू एनीवन एल्सेस फोर्स। तुम्हें कोई के फोर्स से सकम नहीं हो। लाजू प्रभु 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 इतना खा ले, फिर प्रभु बयान मर जाएगी। You see, I'm a very classic example. You give 108 things to Bir Krishna Maharaj. Bir Krishna Maharaj will only eat whatever is suitable for his body. He will only eat that much. Then the others everyone can have. तभी से हमको वैष्णव एटिकेट में भी बताया है, when you are serving प्रसादम also, no matter you have to serve 10 times, स्वभाव दास तो हम लोग ही है, हम लोग का स्वभाव है सेवा करना। What is the difficulty serving someone 10 times? 100 times भी सर्व करो, but to take care, it's about, गुरु क्या करता है? He takes care of the devotees. आप अपने बच्चे को केयर करते हो, मदर्स लोग के पूछो, मदर्स आप मैया लोग जानता है, जो लड़का केयर करता है तो इसे थोड़ा है कि लड़का बोले कि तुम 20 सीसी दूध एक लगे पी लो, 1 सीसी भी बना के देगा, वो आधा सके पिए तो ओवर फीड करेगा तो कौन चाहिए? छोटा बच्चा है ना, उल्टी करे लगी ना, और अभी तो खुद से अपन श्वास कैसे कंट्रोल करो वो भी नहीं जाने हैं। तो कभी कभी ऐसे भय है ना कि छोटा लड़का लोग दूध पी के अपने छाट करे, फिर वही छाट से अपने लोगों के लंग्स में चलते हैं, बेबीज डाई। तो हम लोग के स्पिरिचुअली से कैसे डेथ हो जाए, स्पिरिचुअली डेथ होगी हमसे। तो प्लीज मॉडरेट करो अपन लाइफ के, अप्रोप्रिएटली मॉडरेट करो। प्रोबेबली स्टार्टिंग में, हाँ शुरू में ज्वाइन करो, एकदम यहाँ ले खाओ, यहाँ ले खाते खाते फिर शुरू में तो अट्रैक्शन है पनीर, लेकिन जब ब्लॉकेज मारे लगे तो पनीर छोड़े फिर बेलेग सूप पिए फिर। और बुद्धिमान व्यक्ति लोग ने जब दूसरा के ब्लॉकेज देख के अपन पहले से बेलेग सूप पिए लगे, अगर नहीं किया ब्लॉकेज। बोले कि his sons to follow the path of tapasya, which sanctifies one's existence and enables one to attain the stage of spiritual happiness. Spiritual happiness मिलेगा तपस्या से। अगर spiritual happiness चाहते हो, material happiness नहीं लगेगा। To wake up early in the morning is distressful, but it puts you on the platform of Brahma Bhuta Prasanatma. It gives you spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है वो एवर इंक्रीजिंग है। मटेरियल हैप्पीनेस जो है उसमें क्या इकोनॉमिक्स में कहते हैं सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल वैल्यू। एक रसगुल्ला खाओ मजा पकड़े, मंगरे दूसरा खा लो, मंगरे तीसरा खा लो, चौथा पे अब फिर डिमिनिश हो लगा, अब उसके आनंद गिरे लगा। हम लोग ये कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में लोग पैसा कमा लेता, घर द्वार बना लेता, सुंदर बन जाता है, कर लेता, वो करता है, तो पहले सब चीज बढ़ते जाए तो मजा पकड़ते जाए, फिर एक टाइम है सब डिमेंशन। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कीप्स गोइंग एक्सपोनेंशियल, बढ़ते जाइए से। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ई लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में जाइए। तब ऐसे हम लोग कृष्णा कॉन्स में देखेगा सब डिवोटी लोग ने, कोई डिवोटी अभी आवे आज आवे, लेकिन ऐसे भक्ति पकड़ ले। कोई डिवोटी भी स्ट्रगल करे तो प्रभुपाद जी बोले कि लास्ट लाइफ में कितना कमाई है, 30%, 40%, 50%, 60%, कोई सके 90% लावे, कोई सके 99% लावे। तो ऐसे क्योंकि आप लोग यूट्यूब में देखता ना, वो इतना 1 साल के बच्चा है, बाजा बजाया है, 1 साल के बच्चा है वो यूट्यूब में एक आवे ना, एक कोई इंडिया में है, आई थिंक 4 ईयर बॉय है, 4-5 साल का लड़का है, वो राम कथा करे। तो दिस इज फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। हमको सबके मन करे है कि हमारा लड़का भी ऐसे करता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अगेन संस्कार के बात है ना, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। तब कोई 99% साधु आई, माइंड खराब रही तो डानो आज। प्रबोधानंद बोले किसके लड़का है? जब कृष्ण बलराम दौड़े लगे तो बोले कि किसके लड़का है? तो बोले कि
Spiritual happiness is eternal and ever increasing. Every living being is searching after happiness, but no one knows where eternal and unlimited happiness is obtainable. Foolish men seek after material sense pleasure as a substitute for real happiness. But such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasures is also enjoyed by dogs and hogs. वो प्रभुपाद जी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहे हैं ना। प्रभुपाद जी बोले कि एक तो फुलिश मैन है, बोले कौन मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट के पीछे जाए है? फुलिश मैन, पागल व्यक्ति। तो बोले जैसे छोटा लड़कन है ना, छोटा लड़कन जाने की कोइंस जो है वो पैसा है, तो अगर वो लोग $100 नोट ली से उन लोग के कोइन दे दो, सबको नोट ले ले दो। तो हम लोग यही रकम माया के बोले, माया के एक चीज, माया के नाम है ना, माया के बोले डाकिनी और पिशाचनी, और माया के बोले ठगनी। ठगनी है, ठग ले। कौन सी ठग ले हम लोग? इनके कृष्णा कॉन्शियसनेस के आनंद छोड़ के संसार के आनंद में हम लोग अट्रैक्ट हो जाता है। तो ठगाई गया कि नहीं? उल्लू बना दे हम लोग इनके। तो हम लोग बोले फुलिश मैन ऐसे मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट के पीछे चला जाए, और बोले संसार के एंजॉयमेंट तो डॉग्स और हॉग्स, कुत्ते और सुअर के भी मिले। इसमें मुझे याद आ गया, भागवत में एक स्टोरी है ना, एक टाइम बिकॉज ऑफ हिज ऑफेंस इंद्र बिकेम अ हॉग। इंद्र सुअर बन गए। इंद्र सुअर बन गए तो ढेर रोज कर्म भुक्ति से अपन सुअर अला। तो ब्रह्मा जी आइस इंद्र के लगे, बोले तुम स्वर्ग के राजा है, चलो वापस। बोले स्वर्ग के आनंद बहुत उच्च आनंद है, बोले यहां तुम सुअर बन के बोले विष्टा खाता है। तो इंद्र अब सुअर के अवतार में ना, मतलब सुअर के जीवन में। तो इंद्र बोले यहां भी तो आनंद है। ब्रह्मा बोले वहां हलवा मिली खाए के, तो बोले यहां भी तो मिले खाए के, कौन सी खराब है? बोले इंद्र के वहां तुम्हारा लगे उर्वशी है, अप्सरा है, तो बोले यहां भी तो सुरनी है मन लगे। तो ऐसे इंद्र बोले कि जो स्वर्ग के आनंद है, बोले हम यहाँ आहार निद्रा भय मैथुनम ये तो मिले, तो व्हाट इज द डिफिकल्टी? भागवतम में प्रभुपाद जी पोपट में लिखी है स्टोरी। तो हम लोग के ऐसे सिचुएशन है, हम लोग यहाँ मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में, तो प्रभुपाद जी बोले कि ये तो डॉग्स हॉग्स भी, नो एनिमल बर्ड और बीस्ट इज bereft of sense pleasure. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable. ये संसार के सुख जो ने सब के मिले, सब योनि के मिले। आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो सब योनि के मिले है, कुछ घबराए काम नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का, तभी हम लोग के रेगुलेटेड आहार है, रेगुलेटेड स्लीप है, आहार निद्रा रेगुलेटेड प्रोटेक्शन है, डिफेंस है, और मैथुनम रेगुलेटेड फैमिली लाइफ। तभी से हम लोग बोलता है कि क्या फॉलो करो? चेंज 16 डाउन एवरी डे एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। रेगुलेट करा जाए, रेगुलेट करा जाए धीरे 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 धीरे। तो प्रभुपाद जी बोले है कि द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हाउएवर इज नॉट मेंट फॉर सच चीप हैप्पीनेस। The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization. This spiritual realization is obtained by tapasya or undergoing voluntarily the path of penance and abstinence from material pleasure. Abstinence के मतलब? Abstinence के मतलब है by your choice. तो हम लोग सबके कृष्ण में एनलाइटन करो। आदमी अपने डिसाइड करे कि अब हम वेजिटेरियन हो जाए, अपने से। जब आदमी अपने से डिसाइड करी तो उस चीज में कमिटेड रहे। कोई के फोर्स करेगा तो पहुंची हुई। जैसे वाटर प्रेशर है, पाइप, जब उसके खाली फोर्स करके फिट कर दो बस्ट रहेगी। तो क्योंकि तुम जबरदस्ती करेगा तो थोड़ा ही संगत में हो जाए, बट फिर बस्ट हो जाए।
तो वैसे दुनिया भर के आदमी बिकॉज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं ले है, चांटिंग हरे कृष्णा नहीं ले है, भागवतम नहीं सुने हैं, तो दे बिकम वेजिटेरियन, देन दे गिव अप। हम लोग के लाइफ में भी कितना टाइम हुआ है ना, हम लोग वेजिटेरियन हो जाता है, या तो हम लोग मंगर के वेजिटेरियन हो जाता, दिवाली में हो जाता, जन्माष्टमी में हो जाता, फिर हम लोग गिव अप हो जाता। कहा है? बिकॉज उसके फ्री विल जो बाय चॉइस जो है, राइट चॉइस है, वो हम लोग फ्री अपने से बनाया नहीं। अपने से कैसे बनाएगा राइट चॉइस? जब हम लोग चैंट करेगा, हम लोग प्रसाद खाएगा, तो हम लोग के माइंड अपने राइट चॉइसेस करे लगे, नहीं तो माइंड हम लोग के हरदम रॉन्ग चॉइस कराएगी ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि आगे those who have been trained for abstinence in material pleasures are called धीर और men undisturbed by the senses, उसके धीर बोला जाए। Only these dheeras can accept the order of sannyas and they can gradually rise to the status of Paramahamsa, which is adored by all members of society. King Rishabdev propagated this mission, and at the last stage he became completely aloof from material bodily needs, which is rare stage not to be imitated by foolish men, but to be worshipped by all. इसलिए भागवत में ये भी लाया एग्जाम्पल है, आगे ये ऋषभदेव के टीचिंग्स में ही बताया है कि जैसे जैसे हम लोग स्पिरिचुअली एडवांस होएगा, संसार में संसार के ड्राइव करे है कौन सी? जो हम लोग के तृष्णा है। तृष्णा मतलब डिजायर, उनके डिजायर ड्राइव करना, डिजायर टू ईट, डिजायर टू स्लीप, डिजायर टू मेट, डिजायर टू डिफेंड। तो बोले जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस हुए हैं, उसके जो तृष्णा है वो कंट्रोल हो जाए। हम हरदम याद करता है, जैसे बीर कृष्ण महाराज के हम एडमायर करता है चीज ना। महाराज एक टाइम बोले, महाराज बोले कि हम लोग के डिवोशनल लाइफ में जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस हुई, जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस हुई, तो एक चीज है उसके ड्रिंकिंग और ईटिंग कंट्रोल। इसलिए मैं भागवतम में प्रभु जी बोले कि इवन द ड्रिंकिंग इज कंट्रोल। ड्रिंकिंग मतलब बिया नहीं पिएगा, मतलब नॉर्मल पानी पिएगा भी। सबसे क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड ईटिंग एंड कंट्रोल कंप्लीटली ड्रिंकिंग किसके? फ्रॉम द भागवतम। कौन से के बताए? ध्रुव महाराज और हरिदास ठाकुर और परीक्षित महाराज। एब्सोल्युटली परीक्षित महाराज जब मृत्युदंड मिल गए, मतलब ही इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ द एंड। जो व्यक्ति एंड के बारे में सोचे लगे, he gave up eating and drinking for 7 days 7 nights। तो खाली 7 days 7 nights मतलब खाली 7 हफ्ता भर के खाली व्रत नहीं करेंगे हैं, उसके वास्ते तो 7 days के बाद में एंड रहा लाइफ ना। तो दिस इज हाउ वी ग्रेजुअली। अब ऐसे नहीं किया जाता हूं प्रसाद नहीं लेना, प्रसाद लेना, बट एटलीस्ट गोल जानो ना कि कहां पहुंचेंगे। वो जाने जनता है, हम लोग ओवरसीज जाए बनता है तो निंडी एयरपोर्ट जाके पड़ी, सुबह बस स्टैंड पे जाके बैठे तो वहां तो नहीं जा पाएगा ना। तो हम लोग जानो एटलीस्ट। परीक्षित महाराज नो, दिस होल पिक्चर इज वेरी मीनिंगफुल ना। मीनिंगफुल है कि सुखदेव गोस्वामी इज सो रिनाउंड। सुखदेव गोस्वामी में देखता हूँ तो जो भी व्यासासन में बैठ के क्लास देता है, तो यू हैव टू सी दैट योर लाइफ इज लाइक सुखदेव गोस्वामी। जो भी श्रोता है, देन यू कैन सी परीक्षित महाराज, कितना हम्बल, लेनिंग, बेगिंग। हमको भगवान से बेग करना पड़ेगा, इसीलिए तब मुसलमान ऐसे ही प्रार्थना करे, नमाज पढ़े। यू मस्ट बेग कृष्ण, यू बेग गुरु फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। पहले तो ऐसे सिस्टम रहा ना कि जाओ गुरु के आश्रम में, राम भगवान के देखो, कृष्ण के देखो। गुरु के आश्रम में जाए, कितना सेवा करे, कृष्ण के जंगल में लकड़ी काटे, सुदामा उसके चना खाएंगे, बट चना खाए से पहले लाइक गुरु भेजी जाओ लकड़ी काट के लाओ, बरसात में, तूफान में, बिजली में। तो बोले जब इतना गुरु की सेवा करो तब गुरु ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देवे। हम तो प्रभुपाद जी फ्री में देवे, कोई सेवा करो भी नहीं, भागवतम क्लास में बैठ के सुनो। प्रभुपाद की बुक सब अवेलेबल है, मंदिर आए भी काम नहीं है।
डिवोटी लोग बुक लेके घरे पहुंच जाए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे के वास्ते बुक डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह। मंदिर है, कथा सुने का काम भी नहीं है, डिवोटी लोग मार्केट के किनारे आ जाए, प्रसाद बांटे, कीर्तन गाए, तो कितना इजी कर देते प्रभु। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के वास्ते बहुत सेवा करे पड़े। तभी से जोन डिवोटी सेवा करे है, अच्छा से अपन साधना करे है और अच्छा से सेवा करे है, तो वो डिवोटी आगे बढ़ के दूसरा के बचाए लगे। और एक और एक चीज हम सोचा आज आप उनके संगे शेयर करेंगे। वेरी नाइस, some of you may have seen it already, but भक्ति चरण महाराज बोले है कि वो यहाँ कल्चरल एडवांसमेंट के बारे में बात करा आज के श्लोक में ना। तो भक्ति चरण महाराज बोले है, I'll play this for you so that you can all listen. Oh, नीचे लग, sorry. हरे कृष्ण। Okay. Wait. Good. So show your advancement in that. Where we have the sign of advancement. Okay. And yes, your relationship with devotees will become good. So show your advancement in that way. And develop nice relationship with all the devotees. Create a very nice atmosphere. Don't get into conflict. Don't create any undesirable situation. Create a very nice atmosphere where everyone is happy. And in this way, continue to serve Radha Madan Mohan, Krishna Balaram, and Gaur Nitai, and Srila Prabhupada. So, भक्ति चरण महाराज बोले कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट रही कब? When we develop nice relationship with devotees, nice relationship with sadhu. और रिलेशनशिप के मतलब क्या है? रिलेशनशिप कैसे बना जाए? सर्विस से। और what is one of the most important thing in relationship? जी लव एंड केयर। ओके। और एक मादा और एक चाइल्ड में उसके रिलेशनशिप कैसे, एक मादा और एक चाइल्ड के बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग रहे? चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द मदर, ठीक है। और जी हाँ, स्तन पान कराए माता ना, अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन है, क्या है? और ट्रस्ट है, और नो एक्सपेक्टेशन, और है बी विथ कृष्णा। एक माता के रिलेशनशिप में सबसे बड़ा माता के रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो है चिल्ड्रन के प्रति कौन जिससे आवे? Sacrifice. The mother does so much sacrifice for the child. रात के जब बेबी रोए, पुप्पू कर रहे, भैया नहीं उठ के बोले 12 बजे रात को कि कहा तुम पुप्पू कर दिया, इतना बजे रात को नींद खराब कर दिया हमारा। कोई माई से नहीं बोले। जो लड़का डिपेंड हो जाए, वो डिपेंडेंस कैसे बढ़े है? मादा के सेक्रीफाइस से। अगर मादा सेक्रीफाइस नहीं करता तो लड़का मादा से क्लोज हुई नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस में यही रकम, टू हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद द डिवोटीज, वी ऑल हैव टू लर्न टू सेक्रीफाइस। कभी कभी अपन विचार सेक्रीफाइस करे पड़े, कभी कभी अपन सुविधा सेक्रीफाइस करे। प्रभुपाद 70 ईयर की उम्र में वृंदावन में कौन सी कमी रहा? राधा दामोदर टेम्पल में बैठा रहा प्रभुपाद जी, राधा दामोदर जी के दर्शन करता रहा, रूप गोस्वामी जी के समाधि रहा सामने। कितना परफेक्ट जगह है, बस यही बैठा रहो, ये बैठ के हरे कृष्णा चैंट करते रहो, इतना इजी है। 24/7 कृष्णा के याद करो। एक टाइम एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पूछिस,
बोले प्रभुपाद जी आपके डिसाइपल लोग कहा है आपके इतना ढेर लव करे? तो प्रभुपाद जी के जवाब कौन दिया? बिकॉज आई लव देम। और प्रभुपाद जी के लव कौन सी रहा? प्रभुपाद जी के सेक्रीफाइस रहा। मदर के लव इज सेक्रीफाइस। गुरु के लव क्या है? गुरु के सेक्रीफाइस। प्रभुपाद जी कितना देर सुनता रहा? 2 आवर्स। कहा है? कौन सी सेक्रीफाइस है प्रभुपाद जी के? वो जो भागवतम आप लेकर बैठी है ना, प्रभुपाद कमती सो के वो हम लोग के दिया है। वासुदेव प्रभु भगवती माता जी बोले प्रभुपाद जी जब 1975 में फिजी आए थे, प्रभुपाद वाज ट्रांसलेटिंग द 7th कैंटो, प्रहलाद महाराज का स्टोरी। 7th कैंटो है वो फिजी में लोटोका में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, वासुदेव प्रभु के घर पे जाते हैं। दैट्स प्रभुपाद सैक्रिफाइस। दैट्स सैक्रिफाइस। कभी भी सोचता हूं ना वो फीस्ट बनाए करे, तुम लोग सीमा प्रभु को बता देता, तुम बना दो। सेक्रीफाइस है, ही कैन डू समथिंग एल्स। सेक्रीफाइस है, डिवोटी की सेक्रीफाइस है। तो बाय सेक्रीफाइसिंग, इफ आई सेक्रीफाइस, यू सेक्रीफाइस, देन वी ऑल बेनिफिट, देन वी ऑल डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। मुझे सेक्रीफाइस करके, और कृष्णा के वास्ते भी मुझे सेक्रीफाइस है, बिकॉज वी लव कृष्णा, therefore we follow the four regulative principles. We love Krishna, therefore we are chanting Hare Krishna. We love Krishna, therefore we are reading Bhagavatam. All of you have come here, it's sacrifice. आज तो संडे है, आज तो सकता देरी ले सुते है, लेकिन ये है सेक्रीफाइस। और उस सेक्रीफाइस से कौन जीव है? उस सेक्रीफाइस से आप कृष्ण के क्लोज होता है, और उस सेक्रीफाइस से हम जितना जन यहाँ प्रेजेंट है, हम लोग एक कम्युनिटी फील करता है कि नहीं? हम लोग एक लव एंड केयर फील करता है कि नहीं? मुझे एक दिन आदिराज प्रभु आया मेरे काम पर, दुकान, बोले प्रभु तुम बंद नहीं करना, बोले वी लर्न सो मच फ्रॉम यू। तो ये कैसे हुआ? यू नो आई मेक अ सेक्रीफाइस। आज हम लोग आ रहे थे मंगल आरती में, और मेरे फादर इन लॉ और महाप्रसाद को हम ड्राइव कर रहा था। मैं सोचता, फादर इन लॉ सोचता हुई अभी आधा घंटा होगी हम लोग खाली ड्राइविंग करते, ड्राइविंग मंगल आरती शुरू नहीं। इट्स अ सेक्रीफाइस। मैं ड्राइव कर रहा था, मैं सोचा शायद अभी धीरे से रामा मेरे बगल से पास करेगा। लगेरे जब निकला तो मतलब सेंटर पॉइंट से मतलब संजीव भी आता होगा। इट्स अ सेक्रीफाइस। और फिर सेक्रीफाइस से हम लोग फ्रेंडशिप कैसे बिल्ड हुआ? वो सेक्रीफाइस करता ना। 2 फ्रेंड रहे, एक फ्रेंड के लिए कोई रिसोर्स कमती रहे तो दूसरा फ्रेंड देवे, तो फ्रेंडशिप बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए। तो सेक्रीफाइस से हमें कृष्णा की बॉन्डिंग बन जाए। और यहाँ पे वेरी पावरफुल, मुझे ये सप्ताह का सबसे पावरफुल लर्निंग मेरा यही था। भक्ति चरण महाराज बोले कि अपन जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो दिखाई पड़ी हम लोगन के। कैसे दिखाई? मतलब खाली दिखावा नहीं रही, रियली में दिखाई व्हेन वी आर एबल टू वर्क विद एवरी डिवोटी, एवरी डिवोटी। ये वीक में मुझे कोई डिवोटी बोलता, मैं नहीं आता हूं, मुझे मंगल आरती आना अच्छा लगता है, लेकिन मैं आता हूं तो लोग मुझे आग दिखाते हैं। मैं क्लास देता हूं तो कोई लाइव नहीं करता है, मैं क्लास देता हूं तो कोई मृदंग नहीं बजाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। इट इज सो नाइस, यू नो, Dikshit is very enthusiastic to play the mridanga. But when you are singing a tune, it's a lot of sacrifice. But I still want to encourage him. I don't want to discourage him from Krishna consciousness. So if I do a sacrifice, he will be encouraged. मैं सोचता हूँ amongst everyone, he's the most youngest one here. He wakes up and comes with his parents. So it's a sacrifice. So Prabhupada जी कितना sacrifice किया? Prabhupada जी went to America, कोई डुगडुगी लेके आ गया, कोई गिटार लेके आ गया, कोई फ्लूट लेके आ गया। आप लोग, मुझे मालूम नहीं आप लोग देखा कि नहीं, प्रभुपाद जी के वीडियोस कौन कौन देखा? डिड यू सी वन वीडियो? एक प्रभुपाद जी का वीडियो है, वो गोरे लोग बाजा बजाना नहीं जानते थे, वो एक रीड दबा के खाली पंप करे, उसमें एक आवाज निकले। प्रभुपाद स्टिल चांटेड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Hare. So it's a lot of sacrifice. The more you sacrifice, the more advanced you become. And working with devotees के साथ में always sacrifice रही. जानना devotee के संग काम करता है मतलब आगे से खेलता है. devotee संग साधु संग मतलब आगे gold को purify कर देता है. The more you tap the gold in fire, उतना pure हो जाए. साधु संग वही रकम है. जितना साधु लोग के हम लोग संग करेगा और साधु लोग से सीखेगा, साधु लोग से डिसिप्लिन लेगा लाइफ में, हम लोग उतने प्योर. बोले अगर लोहा भी रहेगा आगी के साथ करेगा, फिर लोहा लोहा नहीं रह जाए, आगी हो जाए. तो हम लोग कोई भी कर्म बैकग्राउंड से आएगा, हम लोग साधु लोग के संगे रहेगा, वो लोग हम लोग के तापी लोहा के गरमाए के फिर उस पर हथौड़ा मारे, तब उसके शेप चेंज करे. साधु यही करे. साधु हम लोग के तपाए के तब हथौड़ा एक हथौड़ा पड़ा हम लोग सन रो हो जाएगा, तौल बिक देगा, तब कैसे हुई. दिस इज ऑलवेज वर्क विद डिवोटीज. डिवोटीज हम लोग के कृष्ण दे. कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शकति आचे. ओहे वैष्णव ठाकुर दोयार सागर ए दासे करुणा. Whatever happens, just stick with the devotees. Hare Krishna. Any questions or comments? Yes, Krishna. Yeah, 2 questions. Yeah, you can go. जो बहुत ही मटेरियल नेचर है, अभी तक थोड़ा हम सोचता है कि हम डूइंग 4 minutes ना, but I'm still in this modes of nature. Like अभी तक एकदम सतों में भी नहीं है ना, like तीनों में, जैसे लास्ट टाइम बोला था फ्लक्चुएट होते हैं ना, तो ऐसे, so that means I'm not Krishna conscious अभी. You are on the path of Krishna consciousness. So it's like वही हम I get confused है ना कि अभी तो खाली एक कदम ऐसे खाली उठाया है, दोनों कदम रखा भी नहीं. But even for सब चीज the regulative principles से follow करता है, that means I'm just taken one step and then अभी वो step रखा भी नहीं, and then maybe very immediately Krishna inspires me in my mind. Probably we can take the example, Rikshit का example ले लो. He's playing the mridanga. He's not playing it perfectly, but he is very happy he's playing. तो हम लोग अभी 3 modes में फ्लक्चुएट होता है, तो we can be very happy. We are becoming Krishna conscious. अभी परफेक्ट ताल नहीं मारता है सब चीज पे, तो हम लोग भी एकदम कृष्णा कॉन्शियस. अभी परफेक्ट ताल नहीं मारता हम लोग कृष्णा कॉन्शियस, बट sadhus are like, we still want to encourage him to play better. They're एकदम कृष्णा कॉन्शियस. That's why we encourage everyone. So one other thing, this is my personal realization. And if you like it, you can take it. If you don't like it, you can just throw it away. मैं सोचता हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में every day you start fresh start करो. Every sunrise is a fresh start. जो कल हो गया है, अगर आप उस पर विचार करके बिल्डअप करो तो ठीक है, लेकिन जो कल हो गया है, अगर वो आपके डिप्रेसिंग और नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करे है, देन आई एम सेइंग डोंट थिंक अबाउट इट. डोंट थिंक अबाउट इट. जो मिस्टेक हुई गई है, जिंदगी कृष्णा कॉन्शियस नहीं कर पाया है, अब उसके लेके हम लोग सोच में नहीं बैठना. Some people might choose to differ from me ना, जैसे कभी कभी डिवोटीज लोग ने 16 ऑन एवरी डे करे के चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए. तो बोले अच्छा आज 14 में है, बिहान 16 + 2 कर लेगा, फिर राइट है कवर करे के चाहिए. बट ये कवर अप फिर कोई सेंस नहीं मेक करे. जब तुम्हारा 16 मिस हो गए, अब तुम बोलेगा बिहान हम 16 + 16 32 कर लेगा, फिर बोले बहुत डिफिकल्ट है, फिर बोले चेंटिंग छोड़े दो. नहीं हुए, बहुत ज्यादा ओवरलोड हुई है. आज 14 कर पाया, 2 नहीं कर पाया, सबके करना चाहिए 16, बट अगर नहीं कर पाया, नेक्स्ट मॉर्निंग उठो, फिर 1 से स्टार्ट करो, आज के 16 कर लो.
अगर 18 नहीं पहनी बड़ी करो। अभी के टाइम में इट्स वेरी डिफिकल्ट, अभी के जमाना में बहुत डिफिकल्ट है टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। इट्स वेरी इजी टू फील गिल्टी एंड डिप्रेस्ड। अब दुनिया में ऐसे भी नहीं है कि पीपल लोगन प्राश्चित करे अपन गलती के। जहां प्राश्चित करे बोलो तहां आदमी छोड़ गिव अप कर दे। इट्स बेटर चेंज। तो ऑलवेज कीप पॉजिटिव। सो दैट्स, आई होप यू आर सेटिस्फाइड। द फर्स्ट आंसर कि वट एवर यू आर डूइंग इज पॉजिटिव प्रोग्रेस, बट इट्स गुड दैट यू आर थिंकिंग कि आई एम नॉट रीच परफेक्शन। दैट्स द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। जहां तुम सोचेगा कि हम परफेक्शन पे आ गया है, तो वही जगह फॉल शुरू होगी। ईगो आए माइंड में और फिर माइंड मुके गिरा। तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम बेटर डिवोटी देन अदर्स। तुम सोचेगा आप 16 राउंड चेंज करता है, संजीव से अच्छा है। गड़बड़ हो जाए, ऑफेंस हो जाए संजीव के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जोन ची जोड़ी लगा के we know we have to follow it exactly, yeah? Whatever is written, As it is, yeah. तो हम वही चीज सोच के always like read or वही दिमाग में है कि because probability say it has to be like that. Yeah. Yeah? No other way. No other way. So I use it as well, ना? तो कल एक सिचुएशन है, तो like I smiled and walked away. But कल एक सिचुएशन है कि जी बोले कि वो 1960s के बाद है, 1968 के बाद है। वो टाइम में चला था, अभी नहीं, अभी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्चुअलाइज बोले करो। बट हमारा लाइक नहीं, लाइक हम नहीं अभी तरह तो अभी हमें थोड़ा एक स्मार्ट करके चला गया ना। बट जैसे बिकॉज सो मच 68 के बाद है, 70 बिकॉज प्रभुपदा से बोलिस है, तो हम मन चाहे वही मांगो हो, चाहे चेंज करो, नहीं मांगो चेंज करो। तो ऐसे सोचते सोचते फिर हम सोचा लगा कि जैसे लाइक जब हम लोग बुक्स रीड करता है तब 19 जैसे जब 70s में अमेरिका में जो वैसे एकदम, तो अभी हमें ना के चेंजेस दिखने लगा। मे बी दैट्स व्हाई ये सब चेंजेस कर रहे हैं है ना, जैसे अभी खाली 50 इयर्स ही के। हाँ, नो दैट्स यू आर करेक्ट, you are correct. We should follow Prabhupada as it is. और ऐसे नहीं है कि कॉन्टेक्सुअलाइज नहीं करो, कॉन्टेक्सुअलाइज करेक्ट पड़े हैं, बट ऐसे नहीं है कि नाउ ISKCON will start initiating devotees who are just chanting one round. प्रभुपाद जी बोला कि मिनिमम 16 राउंड। हम लोग ऐसे नहीं बोला कि अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गए है तो हम लोग सबको अनऑफर्ड खा लेते। वो रकम से कॉन्टेक्सुअलाइज नहीं करेंगे, प्रिंसिपल नहीं सबको चेंज करेंगे, प्रिंसिपल नहीं सबको चेंज करेंगे। अब ऐसे नहीं हम लोग बोला कि अच्छा तुम वेजिटेरियन नहीं है बट तुम सबको डीटी वर्शिप कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्टिल रिमेन्स, बट कॉन्टेक्सुअलाइज ऐसे करे जैसे मानो कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल फॉलो करे हैं और चांटिंग करे 16 राउंड्स। मे बी अभी इनिशिएशन लेवल में थोड़ा डिले है, but you know the desire is that they want to do deity worship, they can have deities at home and worship their deities at home. But हम ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम 16 राउंड चेंज करता है, तुम इनिशिएटेड नहीं है, that's okay, but you can come on the altar and Radha Golok Bihari and dress the deities and offer the aartis. So just to encourage people, you may want to put things into context, but you can't change the principle. I cannot say, अच्छा ठीक है आप 16 राउंड ऑफ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम चैंट करे लो, 16 राउंड ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। आई कांट से यू कैन स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड ऑफ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। एक्चुअली मैं प्रभुपाद जी एक जगह पे चैतन्य चरितामृत में लिखे है, कभी कभी हम लोग लाइक धुन निकालने के वास्ते हम लोग गाए देगा ना, हरे कृष्णा रेस्पॉन्ड करिए हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोले हैं कि द होल मंत्र शुड बी सेंग, दैट्स हाउ चैतन्य महाप्रभु दिस है। तो हम लोग के पॉइंट करेक्ट है। सम ऑफ द डिफिकल्टीज दैट वी हैव इज बिकॉज वी हैव सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू आउटस्मार्ट प्रभुपाद। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी के कॉन्टेक्स्ट राइट रखो।
प्रभुजी कॉन्टेक्स्ट नहीं चलता है कि कैसे चेंज करने लगे ना कॉन्टेक्चुअलाइज कौन तब ऐसे गुरु साधु और शास्त्र के गाइडेंस लेवा जाए। ऐसे कभी कभी हम नहीं जान पाता है कि कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी जनरली वी नो दैट वी डोंट ईट फूड कुक्ड बाय द हैंड्स ऑफ नॉन डिवोटीज ना, तो हम लोग अभक्त के घर के नहीं हाथ के बनाया नहीं खाएगा। बट से फॉर एग्जाम्पल यू गो टू योर पेरेंट्स प्लेस or you go to your brother's place or sister's place, you want to make them favorable in Krishna consciousness. So they may have cooked without onion and garlic in very clean pots. So how do you contextualize it? You can still make an offering of that food and you are still eating prasada. You are not eaten unoffered food. ऐसे तो कभी कभी से हम लोग अपने से नहीं जान पाए तो you can always ask devotees who are probably like whom you respect as seniors or who are more experienced or can guide you. But you can see, अगर devotee तुम्हें principle change करा लगे तब तुम जान लेना कि I have to change my reference now. You don't have to pick a fight with them, but just change your reference. और तब ऐसे हरदम देखो गुरु साधु शास्त्र जैसे आप बोलता है प्रभुपाद की बुक में कैसे लिखा है साधु कौन सी बोले है और गुरु में कैसे गाइड करे, तो it has to be, the principle has to be always the same. और प्रभुपाद जी बोले खाली आचार्य सके चेंज करे, अगर कुछ चेंज करेंगे तो आचार्य सके करे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले इफ यू डोंट चेंज 64 राउंड्स यू आर नॉट अ वैष्णव। तो प्रभुपाद जी अमेरिका के बोले 64 राउंड्स, डिवोटी लोग कोशिश करें इन सबको, बोले कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा 32। तो डिवोटी लोग बोले हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बोले अच्छा 16 से कमती नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले नॉट लेस देन। तब डिवोटी में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। तो आचार्य के तो Papa, you want to say something? Your experience, your actually my father-in-law, he's been devotee from 1970. I was practicing from 1976. 1976. Prabhupada came here in 1975. He was practicing Krishna consciousness from then. So he's been in association with Prabhupada. So definitely he's more wise than me. Now, what is your question about difficulty when you are not able to attain the profession? तो इस प्रश्न में एक भक्ति महाराज गीता में लिखा है कि डिवोशनल लाइफ जॉयफुली परफॉर्म, ठीक है, जो आनंद आएगा जॉयफुली परफॉर्म करेगा। तो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होगा, ये उठना है, स्नान करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सो मच डिफिकल्टी देखते हैं। भक्ति महाराज बहुत अच्छे से समझा है। बोले आपने बोला बाइसिकल चलाना जानते हैं? हाँ सीखा। तो कैसे सीखा? तो पहले कोई बीच पकड़ा, इसे ढकल दिया, गिर गया, तो फिर गया, फिर स्टार्ट किया, आप फिर गया, मतलब प्रैक्टिस किया। आप बोले आप चला सकते हैं? चला सकते हैं। मैं बोले बिल हैंगआउट छोड़ चला सकते हैं। बस कैसे हुआ? पहले बहुत डिफिकल्ट गिरा, उठा, पुश किया, वो धक्का मार दिया, गाड़ी को निकाल दिया। फिर ऐसे से प्रैक्टिस करके अब यू कैन जस्ट लीव द हैंडल के लो क्या मोटे आ रहे क्या इसका घर है, then you become joyful, you survive, you enjoy your life. जैसे भक्ति है, इनसे भी थोड़ा हार्ड लगेगा, धक्का लगेगा, गिर जाएगा, उठाएगा, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, एंड द गाइडेंस को आप हैंडल करेगा, पुश करेगा, तो ऐसे ऐसे सीखेगा। तो भक्ति इस फायदा है। इनसे भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, just by keeping up for the sake of Guru, Vaishnava association, then slowly by practice, we become more and more perfect. Not exactly 100% at least we go towards the direction. So what's important is we should not lose faith, based on inspiration, we should keep practicing और आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, एसोसिएशन बढ़ेगा, प्यूरिटी आएगी, तब इससे से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी और बहुत जॉयफुल बहुत आस्ते से बहुत सरल हो जाएगी और विल बिकम वेरी वेल जॉयफुल। No, even your explanation, I think. No, I can feel the vibe. Do you feel the vibe? Prabhuji 1976 से practice करें, the vibe is there. Na? It's like they say, the juice is there when practice. And from his words, and I was just thinking, having faith, having in the association of devotees, that sound vibration that came from him is different from how I say it. No? Mine is very much, pushed, jabardasti karata. But his was very natural flow, no? It's experience. This is what is called spiritual advancement.
when it's really coming from your heart, it's a different thing. When it's coming by push, you know. तो अभी तो हम लोग सब ट्राइसिकल सिचुएशन में, हम लोग तो बाइसिकल में भी साइड साइड टायर लगा है, प्रसादम नहीं मिली और नहीं मिली तो हम लोग गिर जाएगा. But yeah, I've seen. मैं अपने घर पे अभी my in-laws are staying with me, so मैं भी देखता हूँ ना, मम्मी सवेरे उठकर भगवान की आरती करती है, गाती है, you know, everything, you know. I can feel the vibe, you know. It's कि जो चीज बोला जाए कि naturally love आए लगे भगवान के, it comes with age also, but the point है पापा के कि like, you know, keep practicing. गिरते उठते practice करते हो. Just have faith. You have to have faith in the words of Srila Prabhupada. Yes, देश काल पात्र टाइम प्लेस सर्कमस्टांस कहाँ पे अप्लाई होता है? टाइम प्लेस सर्कमस्टांस कहाँ पे अप्लाई होता है? जैसे ऐसे मुझे एग्जांपल याद आता है कि हम लोग एक बार गया FSM में मेडिकल स्कूल में प्रोग्राम करे, तो श्रीला गुरुदेव के डॉक्टर लोगों के सामने बात करे, प्रोफेसर लोगों सब चीज, तो ऐसे हम दिस इज माई रियलाइजेशन, दिस इज हाउ श्रीला गुरुदेव अप्लाइड द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस. So Srila Gurudev was going to this public program. It was Ekadashi. तो एकादशी के जनरली रूल है ना कि we are observed in chanting and reading and everything, so we don't shave, we don't cut hair, we don't do all these things on Ekadashi. So Gurudev was going to a public program and a program of professionals. It was Ekadashi. Gurudev shaved. Gurudev बोले, because I'm going to present Krishna to the professionals, I want them to be attracted to Krishna. Therefore, I need to present myself well. So for him, the following of the Ekadashi niyam of not shaving is not important. Deshwas Fiji, Kal he was going to give Krishna consciousness. Patra were all the medical professionals. Maybe उसके में नसोरी में कहीं लेके आ जाता, बोले वो प्रोग्राम करा के वास्ते, तो जटाला साधु लोग सुने के तैयार रहता. He would have done that. Then in the same program, I also had this experience. So Srila Gurudev gave a lecture, and then Srila Gurudev invited me to come and do the kirtan. तो मैं ऐसे थिएटर में उसमें बैठा था ना, लेक्चर थिएटर में, तो मैं उठकर गया श्रीला गुरुदेव चले गए स्टेज पे. मैं स्टेज पे गया तो ये वैदिक कल्चर है ना कि शीश सब समय गुरु के सामने माथा टेके. तो I went to the stage and I offered obeisances. गुरुदेव मुझे immediately stop किया. Don't do this here. Again, देश काल पात्र. Because कि all the professors are sitting there, वो लोग के कृष्णा कॉन्शियस के नॉलेज नहीं है, तो लोग कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस मीन्स यू बिकम अ सर्वेंट, तुम्हें दूसरे के नौकर बन जाए पड़ी. डज दैट अट्रैक्ट यू टू बिकम अ डिवोटी? आज आप दास बने के तैयार है, इवन गुरु तुम्हें इनिशिएट करे, नाम दे दे सुमुखा दास. जब फर्स्ट डे तुम आएगा, अगर गुरु तुम्हें बोलता है कि तुम दास है यहाँ पे, तब वो भाग जाता. फर्स्ट डे आवाज आए, तुम लोग माला पहनाता है, थैंक यू प्रभु फॉर कमिंग, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, यू फील इंपॉर्टेंट. तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, आई रिमेंबर दिस वन. हम ऐसे देखता है कि दंडवत गुरु के सब टाइम करा जाए. प्रभुपाद लीला में लिखा ना, प्रभुपाद गुरुदेव एक टाइम 7 में आई थिंक गुरुदेव पूछे प्रभुपाद के, प्रभुपाद बोले ना, वेन एवर यू सी अ सन्यासी यू शुड ऑफर ओबेसेंसेस. तो गुरुदेव बोले कि अगर सन्यासी दिन भर में 10 दफे मिली तो 10 दफे दंडवत करो. प्रभुपाद बोले हाँ. समटाइम्स बीर कृष्ण महाराज टेल्स ना, महाराज बोले कि when I come, I remember when Srila Gurudev, Papa will remember as well. Srila Gurudev ऐसे जब आवे, Srila अपन गुरुदेव पर रूम में से निकले, सबको दंडवत करे. टेम्पल हॉल में जाए, सबको दंडवत करे. मोटर में बैठे, सबको दंडवत करे. मोटर में से उतरे, सबको दंडवत करे. बीर कृष्ण महाराज के हम रूम में से आता, टेम्पल में जाता, कंपाउंड में जाता, फिर सबको हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज. When you see a sannyasi, you should put your head to the जैसे अभी अभी आप लोग तो शायद नहीं जानता है, कोको जने शायद जानता. महाप्रसाद माइक में एक्चुअली प्रॉपर इस्कॉन सिस्टम इज, इफ यू गो टू, आप सीमा प्रभु लोग इंडिया गए, यू मस्ट हैव सीन व्हेन डिवोटीज मीट दे ऑफर ओबेसेंसेस टू वन अनदर. हम लोग तो सोचता वंचाकल्प पर बस खाली शिष्टाचार तक के बाद में बोला जाए. एवरी टाइम यू मीट अ डिवोटी यू शुड एक्चुअली ऑफर ओबेसेंसेस. एक्चुअली वैष्णव सिस्टम में ऐसे नहीं है कि
अरे हरि बोल भैनी दीदी ये सब चीज नहीं चले. You are Vaishnavas. Give respect to others as carrier of Krishna in your heart. ना? But again, Srila Gurudev का example रहा कि like all the time I had experience with Bhakti Charan Maharaj also. Like we offer him respects, but Maharaj would put his hand on our shoulder or bless us like that. It's okay. No? Even so many times I had the experience. Bhakti Charan Maharaj would give me a hug. I'd feel so uncomfortable. It's like I'm not at your. I'm supposed to be in your feet. That's where I get my blessings from, not from your hug. To be very honest. That's my genuine feelings with Maharaj all the time. But कभी कभी हम लोग रहेगा कि महाराज के गॉड नहीं, महाराज तो बराबर रहेगा ना, महाराज गले में Maharaj is giving his love to you, but this is Vaishnava. So time, place, circumstance. I hope that answers. So time, place, circumstance. भक्ति चारों महाराज प्लेन प्रभुपाद से ले रहा तो उसके जोर से छींक आई, छींक आई, जोर से छींकी कोई तो प्रभुपाद भाई क्या जोर से छींका तो भक्ति चारों बोले प्रभुपाद अपने वेद में लिखा है कि अगर छींका तो जोर से बहुत छींक निकल जाओ, यहाँ रुक के नहीं होगा, रुकना. प्रभु बोले नो बोले पेट अभी बैठा है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस वो भी देखिए. इन्हीं के सपने में रिचुअल्स फॉलो करें. रिचुअलिस्टिक भी नहीं हो जाओ, वो भी बात है. और ऐसे भी है जैसे हम लोग एक टाइम डिस्कस करता रहा ना रेशमी माता जी के साथ में, जैसे हम लोग जो प्रोफेशनल्स में काम वाम करे हैं तो तुम कहीं काम से होटल जाके पड़े या जाके पड़े. इवन प्रभुपाद ट्रेवल इन द प्लेन. एक्चुअली प्रभुपाद नेवर एट प्लेन फूड. वो तो बोलेगा अच्छा फ्रूट बाउल दे दो, फ्रूट प्लेटा चल जी. Prabhupada always took his prasadam. I remember Srila Gurudev always took his prasadam. Bhakti Charan Maharaj I've always seen. British Maharaj I've always seen. He takes prasadam. The devotees pack some prasad for him. तो नहीं तो हम लोग बोलेगा टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, हम प्लेट में कहाँ बनाए प्रसाद फ्री करेगा, घरे बनाए के लेके जाओ. Take some thepla and chutney. When you advance in spiritual life, then once you eat unoffered food, you'll know. When you sing kirtan, you'll know you're not feeling ecstasy. Because you eat unoffered food. You automatically realize yourself. Yeah. पूरा blissful नहीं लगी आपको, joy नहीं feel करेगा. जो चीज गड़बड़ करेगा और joy नहीं feel करेगा. Okay. ठीक है? Any more questions, ladies? अदर्शनी माता जी, कितना राउंड? Okay, so we can eat the roti. बच्चा तो बोलता ना, तो रोटी खा के जान जाएगा आप. Okay. Yes. जो सन्यासी लोग जब आज हमने पढ़ा सन्यासी, the types of सन्यासी, तो जो इनिशिएशन बुद्धिज्म के अभी टाइप बनेंगे. नहीं, जरूरी नहीं है. ये तो प्रभुपाद जी तो वर्ण आश्रम में है कि सन्यासी कैन बी ऑफ दिस टाइप. बट चैतन्य महाप्रभु बोले हमारा आज्ञा गुरु है तारा देश. बाय माय ऑर्डर एवरीवन कैन बिकम गुरु. लुक एट भक्ति विनोद ठाकुर. भक्ति विनोद ठाकुर इज गृहस्थ. भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कितना लड़कन रहा? 11. हाँ, एक कमती रस्म का 1 डजन एक्स्ट्रा. 11 children. Even Bhakti Sadhu Thakur said, if I could make my children Krishna conscious, I would have hundreds of children. तो ऐसे नहीं है. अद्वैताचार्य इज अ गृहस्थ, और नारद मुनि इज अ ब्रह्मचारी, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इज बाबा जी. तो ऐसे नहीं है. बोले कि क्वालिफिकेशन फॉर गुरु इज व्हाट? किव विप्र किव न्यासी शूद्र के नाय जय कृष्ण तत्ववेती सही गुरु हो. तो किव विप्र ब्राह्मण होए, किव न्यासी सन्यासी होए, शूद्र के नाय या तो वो शूद्र होए, जय कृष्ण तत्ववेती सही गुरु है. और एक that one, the other श्लोक, that is the qualification, those who have control their senses can accept disciples all over the world. But एक और एक श्लोक है भागवतम में, जन्म प्रभु अर्दम बताइला. आ वैष्णव गुरु वैष्णव स्व पाचो गुरु.
निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारदा. Nipun Vipra. What's the rest? It's a very nice one. Jara Prabhu ka favorite hai. I miss my father today. Abhi rehta hu fat se bata deta. He must be watching online and must be telling. Nipun Vipra. Nipun Vipra. Where is it in the... Prabhupada ji quote kare hai. सत्कर्मा निपुण विप्र. सत्कर्मा 6 एक्टिविटीज. यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह. अगर कोई 6 एक्टिविटीज करे, सत्कर्मा निपुण विप्र. निपुण है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है. मंत्र तंत्र विशारदा. मंत्र तंत्र में विशारद है, कैन स्पीक संस्कृत फ्लुएंटली. मंत्र तंत्र विशारदा. अवैष्णव गुरु नाश्यात. बट इफ इज नॉट अ डिवोटी ऑफ विष्णु, नॉट अ डिवोटी, Vaishnav Guru Nashyat. You cannot accept that person. इतना क्वालिफाइड होते हुए 6 क्वालिफिकेशंस है, निपुण है, मंत्र तंत्र में विशारद है, बट अगर वैष्णव नहीं है, यू कांट एक्सेप्ट. वैष्णव स्व पाचो गुरु. स्व पाचो मतलब डॉग ईटर. इवन इफ वन इज अ डॉग ईटर, बट इफ he has become a Vaishnav, he can become Guru. So hope that helps you. यहाँ तो सब तो वैष्णव है ना. यहाँ तो सब वैष्णव है, सब गुरु है. तो we learn from each other. तभी से डिवोटी के कायम वो रिस्पेक्ट करता है, because we learn from each and every one. हम सबसे लर्न करते हैं. ठीक है, आप लोग बैठ के क्लास सुनता है, बट आप लोग से हम लर्न करता है. बिकॉज आप लोग सुनेगा नहीं तो हम पढ़ेगा नहीं. तो तुम लोग हमारा गुरु हो गया. तुम लोग के कारण, तुम लोग के सुना के वास्ते हमें पढ़े. If I tell the same thing, फिर तुम लोग भाग जाता. So you are my guru. Okay? अच्छा ठीक है, तो we'll stop here now. I've already taken too much time. We had also announced that we will have a small Ishta Goshti. Ishta Goshti मतलब कि we discuss how do we expand Krishna consciousness. That's the discussion. So we can go from life to death now.